Right. So welcome to today's class. In this class we are going to see some more points related with phase log loop, namely capture range, lock range and few applications, and then we'll take queries related with lab experiments if any. So let us start with capture range and lock range. For that purpose we will go to our earlier class and we'll refer to a diagram which we referred last time. In fact, we'll try to copy that and use it as it is so that it will be easier for us to understand. Right. So this is our characteristics, and let us remove unimportant points. For time being, in case it is required, we'll write them again. Right. So this is rather cleaner characteristics. First of all, remember that this is not a waveform. This is a characteristics. This is a characteristics of PLL, phase locked loop, because this is how it tells us what is the behavior. So F in versus F out, or F out versus F in, whatever you call. Right. So let me rather slightly modify this. Fine. So there are 4 frequencies. Is this understood? Are we okay understanding this much? Okay, fine. So there are 4 frequencies involved if you look carefully. So F1, then F2, then F3, and then F4. So F1 and F2 are such frequencies where there is a transition from lock to unlock. So let me show that here. It was unlocked here, and here it became locked. So the transition took place at this point of time, or at this point of frequency, or at this frequency. So this is the frequency at which the captured happened. So I will write down, unlock to lock means lock is captured. Capture happened. Okay. Then when the frequency is increased, the lock was continued up to this point, and at this point lock was lost. So this is actually locked to unlocked. Okay, but so here lock was lost while lock was lost. It means previous to this lock was present. Okay, so here the lock was present up to this point. Right, and when this frequency was reduced from here,
the lock was again established at this point. It means capture happened here. And then when capture happens, the lock state is established. So locking started here, then it continued up to this point, and then here we lost the lock. Okay, so what shall we write here? Lock is lost. Lock is lost. So if we think of what is the frequency range where the capture can happen, then we'll get answer this कि इस रेंज में हमारा कैप्चर डेफिनेटली होगा. Therefore this is called as capture range. This is called as capture range. And then there is a range that once the capture happens, I repeat, once the capture happens, in which range the lock remains as it is, यानी कि ये रेंज हमको मिलेगा. इसके आगे लॉकिंग नहीं होगा तो, लेकिन इसके बीच में लॉकिंग मेंटेन रहेगा. सो दिस रेंज इज कॉल्ड एज लॉक रेंज. Everybody understood this much? Any query? So capture range, we'll write down the definitions. Did you understand this much? Yes or no? Okay. So if we write down what is capture range, what is lock range. So capture range it is the range of input frequency in which if f in false, it means f in is adjusted such that it is in this range, then the capture of lock will happen. It means the PLL will surely go from unlocked condition to locked condition. It means it will capture the lock. And then if we talk about the lock range, so it is the range of input frequency over which PLL will maintain lock. It will maintain the lock. So note down this two definitions. Capture range, it is the range of input frequency in which if input falls, then the capture of lock will happen. And lock range means it is the range of input frequencies over which PLL will maintain the lock. Did you understand this much? Okay. Now let us come to a fundamental question. Let me ask a question first, and then you will answer that question. It's a simple question. I have a PLL. I have a PLL. Then I have some input frequency and then some output frequency. Okay, it's a and F input is within capture range.
if it is the situation, what will happen to f out? This is the question. f input is within capture range, तो क्या होगा? What will be the relation between f in and f out? इसमें रिलेशन क्या होगा? हेलो, what is the definition of capture range? Capture range, it is the range of input frequency in which if f input falls then the capture of lock will happen. लॉक होता है यानी कि उसका मतलब क्या है? हेलो, लॉक होता है इसका मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट में रिलेशन क्या है? इक्वल टू, यस, फैंटास्टिक, इक्वल टू, ठीक है. एफ आउट इज इक्वल टू एफ इन, सेम, परफेक्ट. नाउ द फंडामेंटल क्वेश्चन इज, I can do all these things, I can do all these things. Listen carefully. मैं एक ऐसा डब्बा लेता हूँ, बॉक्स, एफ इनपुट देता हूँ और एफ आउटपुट आएगा और मैं क्या करूँगा, अंदर से उसको शॉर्ट करूँगा, एक वायर लगाऊंगा बस. तो एफ आउट इज इक्वल टू एफ इन आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? यस, वो तो आएगा, वायर लगा तो आएगा. तो इतना झमेला करने की क्या ज़रूरत है? वीसीओ लगाओ और ये एक्सऑर गेट लगाओ और क्या फिर लो पास फिल्टर लगाओ, इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करो, डेमो देखो और फिर एक वायर लगाने से अगर काम होता है तो क्यों करे इतना सब? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है. ये अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसका आंसर देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो पहले आना चाहिए समझ में. अंडरस्टूड दिस? हमने लॉक वगैरह सब देखा, लॉक देखा भी, एक्चुअली डेमो भी देखा. लॉक होता है, लॉक होने के बाद वो ट्रैकिंग भी होता है. आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ट्रैक्ड, जैसे इनपुट चेंज होता है आउटपुट भी चेंज होता है. सो वही काम हम वायर लगा के कर सकते हैं. अगर वायर लगाया तो फुल रेंज पे होगा, नॉट ओनली इन कैप्चर रेंज. इनपुट दे दो, आउटपुट ले लो. तो पीएलएल करने की ज़रूरत क्या है? आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन इन योर माइंड? हाँ, राइट. सो द सिचुएशन is like this. Why people use PLL is because of one first reason is that when input is temporarily unavailable, output continues to be present. ये PLL में होगा. एंड इट विल नॉट हैपन व्हेन यू यूज़ अ वायर. अगर एक वायर लगाओगे तो इनपुट गया तो आउटपुट भी गया. यस और नो? हाँ, लेकिन PLL में क्या होता है? PLL में होता है एक फेज डिटेक्टर, फिर लो पास फिल्टर और फिर VCO, इतना सब होता है. हाँ, ठीक है. नाउ लो पास फिल्टर में क्या होता है? R और C होता है यूजुअली. इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, बट simple circuit is this. Now in this circuit, whether the output will change fast or slow. Here, क्या आंसर है आपका? कैपेसिटर का वोल्टेज इन यहाँ चेंज हो गया इतना,
और आउटपुट स्लो चेंज होगा या फास्ट चेंज होगा? स्लो चेंज होगा. एवरीबडी हैज़ आंसर्ड प्रॉपरली. ठीक है. और आर सी कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है. इफ़ आर सी इज़ लार्ज then it will be very very slow. It means this will be almost nearly DC or low frequency. Variation frequency कम रहेगा. Are you getting the point? तो यहाँ का स्लो चेंज होगा. समझो कि सडनली कुछ तो गड़बड़ हो गया और एफ इनपुट कट हो गया टेम्पोरली. ये स्विच हमने टेम्पोरली बंद किया, तो यहाँ का वोल्टेज सडनली ज़ीरो को जाएगा क्या? यस और नो? नो, बिकॉज देर इज़ अ लो पास फिल्टर. ये कैपेसिटर है. वो कैपेसिटर बोलेगा कि आपका इनपुट गया, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो हमारा सर जो चार्ज है वो स्लोली डिस्चार्ज करूँगा, क्योंकि आपने रजिस्टर बड़ा लगाया, तो कैसे मैं डिस्चार्ज करूँ फास्ट? तो ये कैपेसिटर अपना वोल्टेज स्लोली डिस्चार्ज करेगा, यानी कि ऑलमोस्ट सेम रखेगा. तो ये आउटपुट वैसा का वैसा रहेगा, और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं एफ आउट. तो एफ आउट वैसा का वैसा आपको मिलेगा. ये सब वायर लगाने से नहीं होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ, दिस इज़ वाई पीपल यूज़ PLL. वेर एवर दिस इज़ द रिक्वायरमेंट कि अगर इनपुट टेम्परली गया तो भी आउटपुट चाहिए, और वेरी सिमिलर फ्रीक्वेंसीज चाहिए, तो PLL लगाते हैं. आर यू? एंड दिस इज़ वेरी पॉपुलर और यूजफुल इन कम्युनिकेशन सिस्टम. जैसे कि ये एक ट्रांसमीटर है, ये एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है. यहाँ से एक आपने सिग्नल दिया या क्लॉक दिया, यहाँ से क्लॉक आउटपुट आ गया, और we want to synchronize these clocks, but suddenly there is some problem in between. बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया, वैसे कि कम्युनिकेशन में होता है ना, there is some problem in between because of something, and we lost the synchronization, but output will be available continuously. ठीक है? Are you getting the point? Okay. Have you ever tasted sugarcane juice? आप बोलेंगे ये क्या बीच में आ गए, शुगर केन जूस कहाँ से आ गया? गन्ने का जूस होता है ना, वो जूस देने वाले ठेले होते हैं, वहाँ एक इंजन होता है ना, डीजल इंजन होता है. अभी तो मोटर होती है, बट पहले डीजल इंजन होता था. डीजल इंजन आपने कहीं देखा है? हैव यू सीन डीजल इंजन? हाँ, तो डीजल इंजन में क्या होता है कि एक बड़ा फ्लाई व्हील होता है. आई चेक वेदर आई कैन. डीजल इंजन, डीजल इंजन का फोटो अगर मिलेगा तो देखेंगे. हाँ, ये डीजल इंजन, ये अपने आप देख रहे डीजल इंजन? यस और नो? हाँ. सो यहाँ एक्चुअली इंजन इतना ही है, बट ये बड़ा वाला है ना, इसको फ्लाई व्हील बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट एज ए फ्लाई व्हील? This is called as a flywheel. Okay. So what flywheel does is that even if there is a interruption between fuel supply, it forces the engine to continue its momentum, क्योंकि वो बड़ा होता है, हेवी होता है. The same thing happens in PLL. ये कैपेसिटर है ना हमारा, कहाँ गया कैपेसिटर? ये वाला, ये कैपेसिटर हमारा, ये फ्लाईव्हील जैसा काम करता है. जो मैकेनिकल में जो फ्लाईव्हील होता है ना, वैसा हमारा कैपेसिटर काम करता है. वो जैसे फ्लाईव्हील बोलता है मैं मेरा स्पीड सडनली नहीं चेंज करूँगा, वैसे हमारा कैपेसिटर बोलता है कि मैं मेरा चार्ज और वोल्टेज सडनली चेंज नहीं करूँगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो PLL इज़ वेरी यूजफुल वेर एवर यू वॉन्ट आउटपुट सिग्नल synchronized to the input, and you want the output to be available even when the input is temporarily lost.
अगर इनपुट परमानेंटली लॉस्ट है तो वो लॉक जाएगा, बट टेम्पररी लॉस्ट है, जैसे कि डीजल इंजन का आप डीजल बंद कर दो, वो थोड़ी देर चलेगा, बाद में बंद होगा, बट थोड़ी देर चलेगा, फिर से डीजल चालू होगा तो फिर से चालू होगा वो. सो लाइक दैट. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. सो यू कैनॉट रिप्लेस PLL बाय ए वायर. ये बोलने में अच्छा है, लेकिन ये यूज़ नहीं करते लोग. पीपल यूज़ दिस बिकॉज इसका फ़ायदा हमने यहाँ लिखा है. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस मच. ठीक. नाउ विल गो टू वन इंटरेस्टिंग सर्किट which is called as, it's an application of PLL, frequency multiplier. This is the third point of today, frequency multiplier. And only PLL can do this. You cannot use any other circuit. इसलिए PLL is indispensable part of electronic circuit. You cannot, आप नहीं बोलेंगे PLL हटा दो और इलेक्ट्रॉनिक्स चलाओ, नहीं चलता है वो. इन मेनी प्लेसेस यू नीड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर. तो ये कैसे काम करता है ये देखेंगे. उसके लिए वी विल हैव PLL, जैसे कि फेज डिटेक्टर वो तो रहेगा, लो पास फिल्टर भी रहेगा, और VCO रहेगा, और यहाँ हमने क्या करना है, एडिशनली डिवाइड बाय n लगाना है. तो ये हो गया हमारा सिस्टम. इस सिस्टम ने हमने एडिशनल क्या लगा, व्हाट वी हैव एडेड, डिवाइडेड बाय n. अब वेदर डिवाइडेड बाय n इज इम्प्लीमेंटेबल, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. इफ़ वी वांट टू डिवाइड स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए हमको फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना चाहिए या काउंटर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज फ्लिप फ्लॉप इज अगेन, सॉरी, काउंटर इज अगेन चेन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. Everybody understood this? Yes or no? हाँ, काउंटर और फ्लिप फ्लॉप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. Right. Now, whatever function we have seen of the PLL, if F input falls in capture range, if F input in capture range, then PLL locks. If PLL locks, these two frequencies, they become equal. Right? Suppose if input is say 1 kilohertz, let me write down 1 kilohertz. If it is locked, then this will also become 1 kilohertz. 1 kilohertz. And if this is 1 kilohertz, obviously this should be 1 kilohertz into n. यस और नो. उसमें कोई अदर वे नहीं है. हाँ, अगर आप ये n का वैल्यू चेंज करोगे, सपोज यू राइट इट 2, n का वैल्यू 2 है, तो इनपुट और आउटपुट डबल हो जाएगा, डबल फ्रीक्वेंसी का. n 3 रखोगे, आउटपुट ट्रिपल हो जाएगा, लाइक दैट. ओके. एंड दिस वैल्यू, ये जो n है ना, ये डिवाइडर, you can have a programmable divider also. You can use programmable divider. अगर programmable divider रखा है, तो you can change its value, division value you can change, and by changing division value you can have changing of multiplying factor. समझ में आ रहा है क्या ये थोड़ा थोड़ा? This also cannot happen, I repeat, this also cannot happen by using
दिस। आप बोलोगे कि मैं PLL नहीं लगाऊंगा, वायर लगाऊंगा, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो PLL इज इंडिस्पेंसिबल एट अंडर दिस सिचुएशंस। अगर वायर लगाने से काम होता तो लोग PLL यूज़ करते ही नहीं, बिकॉज इंजीनियर्स डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट एनी रीज़न। वो खाली पीली कुछ नहीं करते। अदर पीपल कैन डू। जैसे एक कवि है, वो कवि ऐसे ही कविता लिखता है, उसका कोई मतलब होगा प्रॉबली कि एक पिक्चर के लिए गाना देना है, वो ठीक है, बट जनरल कवि है, वो ऐसे मन में आया वो करता है। बट इंजीनियर ऐसा कुछ नहीं करते। इंजीनियर बोलते कि उसका यूज़ है क्या तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज there is always a reason for everything that we study. हर एक कोई भी इंजीनियरिंग सिस्टम है तो उसमें से हर एक ब्लॉक, हर एक पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन होता है। शायद हमको पता नहीं होगा इनिशियली, बट इट इज़ देयर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर आइडिया? Okay. So frequency multiplier can be used at various places. Important application of frequency multiplier is in CPU. आपको CPU का महत्व समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, because you are living in the world of mobiles and CPUs, है ना? We are surrounded by so many CPUs. तो उस CPU में, हर एक CPU में PLL रहता है, because we want to run this CPU और processor at variety of speeds. जब हमको पावर कंजम्पशन कम करना है तो उसका स्पीड हम कम करते हैं। जब फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, जैसे कि कैमरा का पिक्चर लिया और उसका कुछ तो मॉर्फिंग करना है या कलर चेंज करना है, एडिटिंग करना है, तो फास्ट प्रोसेसर चाहिए, तब हमको स्लो नहीं चाहिए। और जब हमको कोई कॉल आता नहीं, स्टैंड बाय मोड पे जाना है, बैटरी डाउन है, देन वी रन द CPU एट वेरी लो स्पीड। यानी कि प्रोसेसर को वैरायटी ऑफ स्पीड में चलाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है? उसका क्लॉक चेंज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, एंड दैट हैपन्स ओनली व्हेन वी यूज़ दिस। अगर ये आप बोलोगे कि ये मैं नहीं करूँगा, तो CPU हैज़ टू बी ड्रिवन एट ओनली वन क्लॉक। अलग अलग क्लॉक में वो नहीं काम करेगा, ठीक है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, सो दिस इज़ इंडिस्पेंसिबल। अगर आपको CPU इंडस्ट्री में जाना है तो PLL आपको सही ढंग से समझना चाहिए। तो CPU इज़ वन एप्लीकेशन, एंड सेकेंड एप्लीकेशन इज़ सिंथेसाइज़र। आपको सिंथेसाइज़र पता होगा, तो आई वोंट एक्सप्लेन दैट, बट वेर एवर यू वॉन्ट टू जनरेट वैरायटी ऑफ फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, तो आप अलग अलग डिवाइडर लगा के अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है? देर आर अदर न्यूमरस एप्लीकेशंस ऑफ PLL इन वैरायटी ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, बट दीज आर प्रोमिनेंट टू, ठीक है? ये बात समझ में आ गई आपको? तो वेरी क्विकली विल टेक अ रिकैप। हमने आज समझा कि कैप्चर रेंज क्या है, लॉक रेंज क्या है, और हमने ये भी समझा कि ये वो कैसा कैसा कैलकुलेट करते। पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी ने देनी पड़ेगी या आपको प्लॉट करनी पड़ेगी। अगर अवेलेबल है तो आप 4 फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करो कहाँ कहाँ ये एक्टिविटीज़ होती, और F3 माइनस F2 विल बी F3 माइनस F2 विल बी व्हाट इज़ दैट? कैप्चर और लॉक, C और L, C, और F4 माइनस F1 विल बी लॉक रेंज। ये आपको समझ में आ गया। उसका डेफिनेशन भी हमने लिख लिया। फिर हमने एक क्वेश्चन पूछा, हमको ही खुद को क्वेश्चन पूछा कि अगर F आउट और F इनपुट इक्वल है तो हम वायर क्यों ना लगाएं। तो इसलिए हमने उसका ये लिया और रीज़न लिखा। तो अगर इनपुट टेम्परेरी अनअवेलेबल है
the output continues to be present, but this happens only if PLL is used. ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन में लगता है because communication media can disturb the signal transfer sometimes. और frequency multiplier is one more application which we understood, and we understood also that it is very very useful in CPU and synthesizers. ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? Is this understood today's topic? Hello, yes or no? Okay, fine. So if you have written down any questions or thought of any questions regarding lab, please ask the question. You can unmute and ask questions if you like. We can go up to 20 minutes from now, or 15 minutes at least. तो 15 मिनट में आप क्वेश्चन पूछो. Hello, do you have any questions? लगता है कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा लगता है. आई डोंट नो. Hello, are you going to ask questions or can we take a pause? As I have already told, the lab exam LA4 will involve performing an experiment. तो आपको वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट. तो उसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलिए. एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम? Will all students perform at one time? I will give you the problem statements to all. Everybody will start doing his own work on his own. After some time, I will ask everybody to present one by one. I cannot see everybody's screen at a time, but everybody can perform the experiment simultaneously. When we start, I will show you list of experiments, और किसको कौन सा लिस्ट है वो मैं दे दूंगा. एक्सपेरिमेंट है. Where is the list? Why you need list? List is in the lab manual ना. आपने लैब मैनुअल देखा नहीं क्या? लैब मैनुअल में जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, 9 एक्सपेरिमेंट्स विच वी हैव डन, out of that only one has to be done. It is actually batch wise ना, EN1 EN2 EN3. तो आपको पता नहीं आप कौन से बैच में है. How many minutes prior to oral? Total we have 2 hours. 2 घंटे में तो how much time you need for doing one experiment?
1 आवर, ओके, 1 आवर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, और 1 घंटा हम ओरल ले लेंगे, प्रेजेंटेशन ले लेंगे। और जिसका अगर जल्दी होता है उसका जल्दी करेंगे, सो दैट ही कैन गेट रिलीव्ड और ही विल फिनिश अर्ली, ही और शी विल कैन कंप्लीट अर्ली, ठीक है। दैट आई विल डिसाइड, हाँ, व्हाट टाइम। I think we can start by 9 o'clock so that we can finish early. 9 to 11 can be one slot. So we can start 9 to 11. We can have a gap of 1 hour. So 12, because it can go beyond 11 also sometimes. Some students may face some problems. तो ये 11:30 बजे तक जा सकता है, 12 बजे तक जा सकता है। इफ़ आई एम कन्विंस कि दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम विच इज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल, तो मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकता हूँ, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। तो हम चालू करेंगे 12:30, तो ये 2:30 तक जाएगा, और ये भी थोड़ा आगे जा सकता है 3:30 तक। तो 3:30 से हम 5:30 तक ले सकते हैं, विच कैन गो अप टू 6 o'clock और 6:30. So enough time in between, at the same time enough time for everybody, and every student has to spare 2 hours only. अगर आपको सही आता है तो 2 घंटे में आप फिनिश कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आता नहीं है, when if you are struggling, then some extra time will be given. The idea is not to prove that you don't know certain things. The idea is to understand how far you know and how far you are capable of doing things. ये हमारा आइडिया है। ये सही है या गलत है? So those who will perform good, they will get more marks, and those who are unable to do, they will not get good marks. इतना तो होना चाहिए। अगर हर एक को सेम मार्क्स पड़ेंगे तो अच्छे स्टूडेंट्स को ज़्यादा एफर्ट किया तो कुछ उसका फ़ायदा नहीं होगा। आर यू अग्रीइंग विद दिस? हेलो, तो कल 9 बजे चालू करेंगे, एंड 8:45 एवरीबडी विल लॉग इन। तो फिर मुझे लॉग इन होने में टाइम गया तो दैट शुडंट हैपन। व्हेन वी नो दैट वी हैव टू बी देयर, 9 o'clock चालू करना है, तो 8:45 को हम कनेक्ट होंगे। वंस इंस्ट्रक्ट फॉर दोज हु, हाँ, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि लैपटॉप नहीं है इनको, जो उनके पास है, उनके पास क्या है, ब्रेन है, पेन और पेपर है, कैमरा है, मोबाइल है, इससे जो भी बनता है मैं प्रॉब्लम दे दूंगा उनको। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो एवरी टाइम पीपल आर आस्किंग द सेम थिंग अगेन, मेरे पास लैपटॉप नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, व्हाट शैल आई डू? डोंट आस्क मी व्हाट शैल आई डू, आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू विद वॉट एवर यू हैव। अगर आप बोले कि मेरे पास ब्रेन है, पेन है, पेंसिल है, लेकिन समझ नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग, आई हैवंट डन एनी एक्सपेरिमेंट, देन यू विल फेल। इतना सिंपल है। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, मैंने सिमुलेशन भी नहीं किया, दैट इज़ फाइन, बट मुझे आता भी नहीं है, मुझे ऑप एम्प भी पता नहीं है, मुझे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी आता नहीं है। I cannot identify whether there is a negative feedback or positive feedback. I cannot draw even a simple circuit of op amp on paper. तो obviously fail होगा ना वो student. Are you getting the point? Is it okay or is it not okay?
Not having laptop is not a problem. See, everybody is in different situation, so that is not a problem. Not having simulated certain things, that is also okay because laptop was not there. But not connecting with students who have laptops, who have simulations, उनको मत पूछना, कुछ भी मत करना, that is bad ना. मेरे पास लैपटॉप नहीं इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा और मुझे ऐसे आगे जाने दो, वो नहीं होगा. आपको समझ तो लेना चाहिए. यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट सर्किट. समझो प्रोटेस्ट में सर्किट है, मैंने दिखा दिया ये सर्किट है. कौन सा सर्किट है? अगर आपने बताया कि सिंपल सर्किट भी यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, तो क्या फ़ायदा उसका इतना 3 महीने काम करके. तो दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो एनीथिंग दे विल फेल. दो स्टूडेंट्स who know all the things or major things, important ideas, even if they don't have laptops, it doesn't matter. And those who have done everything, they are able to answer most of the things, then they will get good grades. Is this okay? फाइन फाइन. तो आपको करना क्या है कि आपका पास जो ब्रेन है, अगर लैपटॉप नहीं तो भी चिंता मत करो. आपके पास ब्रेन है, पेपर है, पेंसिल है, तो आप सर्किट डायग्राम निकालने का प्रैक्टिस कीजिए, वेवफॉर्म निकालने का प्रैक्टिस कीजिए. ये इनपुट दिया तो क्या होगा, एनालिसिस तो आना चाहिए आपको. लैब मैनुअल में जो भी सर्किट है उसका एनालिसिस आना चाहिए. वो लैब मैनुअल प्रॉपरली पढ़ो, रीडिंग्स क्या क्या लोगों ने लिए है उनसे उनका रीडिंग ले लो और वो उसका एनालिसिस करो. ये रीडिंग क्यों आया है, उनको पूछो ना. फिर क्या हाथ पे हाथ धरे बैठोगे, लैपटॉप नहीं इसलिए, है ना. इज एनीबडी देयर विदाउट लैपटॉप? अभी 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 एनीबडी इज देयर विदाउट लैपटॉप? अच्छा, निरंजन के पास नहीं है. हेलो, यू डोंट हैव लैपटॉप? ओके ओके. तो समझो कि निरंजन, यू आर एम्प्लॉयड इन इन्फोसिस में आपको या इंटेल में आपको नौकरी मिली है, एंड यू आर टू ज्वाइन इंटेल, है ना. एंड यू आर इन पुणे, ऑफिस इज ऑल्सो इन पुणे, एंड यू आर टू ज्वाइन टुडे. तो विल यू से दैट आई डोंट हैव अ बाइक, तो मैं इंटेल नहीं ज्वाइन करूँगा, या आप जैसे भी बन सके वहाँ तक जाओगे और ज्वाइन करोगे? क्या करोगे? हां, कसा पण करून जाशील ना, चालत जाशील पण जाशील. मग आत्ताच का बरं आपण लॅपटॉप नाही आहे, हे नाही आहे, ते नाही म्हणत बसतोय? हां, तू म्हणलं नाही, तुझं नाव घेतलं एक्झाम्पल देण्यासाठी बरं का. डोंट वरी. पण सगळ्यांनी पण हे लक्षात ठेवा की लॅपटॉप नाही आहे, काय करायचं विचारणं हे अगदी बरोबर आहे. हां, त्याच्यावरती आपण ॲन्सर पण दिले. पण आता तीच गोष्ट घेऊन आपण बसायला नको. आपल्याकडे जे आहे त्याच्यामध्ये जे होऊ शकतं तेवढं तुम्ही करा, आणि तुम्हाला येतं हे तुम्ही ओरली प्रूव्ह करा किंवा ॲक्शननी. म्हणजे मी डायग्राम काढू शकतो, हां मी फोटो काढला किंवा स्क्रीन शेअर केला. मोबाईलवरती तुम्ही स्क्रीन शेअर करू शकता ना. हां, आणि तुमचा कॅमेरा ऑन करा, त्या कॅमेऱ्याने कागद दाखवा तुम्ही काढू शकला, बुवा हे इक्वेशन लिहू शकलो मी. तुम्हाला एखादी गोष्ट येते हे प्रूव्ह करायची जबाबदारी तुमच्यावर असते ना. त्यामुळं चिंता करून काय होत नाही. तुम्ही फक्त तुमची तयारी तेवढी करत जा. लॅब मॅन्युअलमधले सगळे 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 सर्किट्स तुम्हाला ड्रॉ करता आले पाहिजे, ते कसे वर्क होतात ते सांगता आलं पाहिजे, त्याची इक्वेशन्स काय असतील तर ती तुम्हाला सांगता आली पाहिजे. कमीत कमी लॅब मॅन्युअल तुम्ही समोर तर असेलच तुमच्याकडे लॅब मॅन्युअल. तर लॅब मॅन्युअलमध्ये ते का लिहिलं आहे, कशासाठी लिहिलं आहे, प्रोसिजर काय आहे, ही तुम्हाला थोडी माहिती पाहिजे ना. मला काहीच माहिती नाही, मी बोलणारच नाही आहे, मी डायग्राम पण काढणार नाही, मी कॅमेरा पण ऑन करणार नाही, आणि मला असंच पुढे जाऊ द्या, असलं काय जमणार नाही. बरोबर आहे का हे? Okay, so we will help the students, but non-performing students will not be spared.
तुम्ही तयारी व्यवस्थित करा. त्याच्यात काही शंका असेल तर संध्याकाळी पण मी अवेलेबल आहे. दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. तुम्हाला जेव्हा शंका येईल तेव्हा व्हॉट्सअप करा. काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. सपोर्ट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. चला आपण आता पॉज घ्यायचा. शॅल वी टेक अ पॉज. आत्ता काही शंका नसतील तर पॉज घेऊ. ओके फाइन. चलो फिर बाय.